بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر سے نکالنے کا حکم دینے والا پرتھوی راج چوہان کس طرح ہندوستان سے نکلا؟ حضرت خواجہ کریم نواز کے کرامت کا ایک لازوال واقعہ بلا تاخیر چلیے جانتے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج چوہان مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کا اظہار موقع با موقع کرتا رہتا تھا۔ وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتا تھا۔ وہ شنام ترازی سے کام لیتا تھا اور ظلم اور اعزار ثانی کے بہانے تلاش کرتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کو تکلیف و اذیت دے کر اسے خوشی محسوس ہوتی تھی اور دین اسلام کے خلاف الزام تراشی سے اسے سکون ملتا تھا۔ ایک روز پرتھوی راج چوہان نے ایک نو مسلم راجپوت کو بحیثیت سفیر حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس بھیجا اور کہا کہ کہہ دے کہ راجہ پرتھوی راج چوہان نے کہا ہے اپنے مرشد سے کہہ دو کہ وہ اجمیر کی حدود سے اپنے ساتھیوں سمیت نکل جائیں۔ چند روز کی مہلت ہے ورنہ اس کے بعد میں کسی قسم کی رعایت نہیں دوں گا۔ نو مسلم راجپوت سردار نے اپنے پیر و مرشد اور رہبر رہنما حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بتایا تو آپ جلال میں آ گئے اور اسی لمحے آپ کی زبان مبارک سے محض یہی الفاظ ادا ہوئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تاہم یہ شخص اور یہ ظالم حکمراں جلد ہی گرفتار ہوگا اور اس کا انجام اب بہت قریب ہے۔ اس کی ذلت عامی شکست کو زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا۔ ہمیں مہلت دینے والے کے پاس اپنی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے ادا شدہ یہ جملے کسی نے راجہ پرتھوی راج چوہان تک پہنچائے تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ آپ کا مذاق اڑایا، مگر آپ کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ اگرچہ راجہ پرتھوی راج چوہان کھلی آنکھوں سے واضح طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ اور سن چکا تھا، مگر وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بے خبر تھا، سوچ و سمجھ رکھتے ہوئے بھی بے سمجھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس طرح اونٹ جامد و ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اناج ساگر کا پانی کس طور پر ایک کوزے میں سمٹ آیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے کرائے گئے جادو کس طرح شکست کھا کر مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ اس کی ماں کی پیش گوئی بھی اسے کانوں میں گونجتی اور دل و دماغ کے تاروں کو ہلاتی تھی، مگر رب ذوالجلال جن کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے اعمال کی سزا کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ایک بات جس نے راجہ پرتھوی راج چوہان کے غرور و خمار میں اضافہ کر دیا تھا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کے حملوں کا جواب نہ دینا تھا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے آپ کے خادم خاص سید روشن علی کی انگلی کاٹ دی تھی تو آپ نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ قانون قدرت ہے کہ وہ سرکش کو مہلت دیتی اور شاید راہ راست پر آ جائے اور یہ حجت تمام ہو جائے، لیکن جب کسی شرکس کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی تو پھر قدرت کا قانون حرکت میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بڑے بڑے فرعون غرق کے دریا ہو گئے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کا دراصل یہ امتحان تھا، مگر وہ اس امتحان میں ناکام نامراد ہوئے۔ ان سب باتوں کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پرتھوی راج چوہان نے 587 ہجری میں مسلمان سپہ سالار صحاب الدین غوری کو شکست دی تھی۔ اس سے راجہ پرتھوی راج چوہان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے اور وہ مسلمانوں کو چونٹی برابر بھی نہیں سمجھتا تھا، مگر ادھر شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان سے شکست کھانے کے بعد ایک لمحہ بھی اس سوچ فکر کے بغیر نہیں گزارا تھا کہ وہ راجہ پرتھوی راج چوہان سے اپنی شکست کا بدلہ کیوں کر لے، کون سی حکمت عملی اپنائے اور کس عمل کو اختیار کرے۔ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو پھر سے برتری دلائی جائے، اور اپنی فوج کو سب روز محنت و مشقت سے تیار بھی کر رہا تھا اور رب رحمان رحیم سے دعا و التجا بھی کر رہا تھا۔ شہاب الدین غوری نے تقریباً 1 سال تک سب روز کی محنت و مشقت اور زبردست تیاری کے بعد اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اب وہ راجہ پرتھوی راج چوہان کو یقینی طور پر شکست دے سکتا ہے۔ اس دوران شہاب الدین غوری نے ایک ایسا خواب بھی دیکھا، بلکہ ایسے کئی بار دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، شہاب الدین، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اٹھو اور اجمیر پر یلغار کرو، رب غالب و فتح تمہیں ضرور فتح سے نوازیں گے۔ شہاب الدین غوری نے پہلی دفعہ یہ خواب دیکھا تو اسے ایک عجیب سی فرحت و راحت کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک چمکدار بساست واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ اس کے قریبی مشابہین نے شہاب الدین غوری سے پوچھا،
पृथ्वीराज से शिकस्त खाने के बाद तकरीबन 1 साल होने को है, मगर आज तक आपने न अच्छा खाया, न अच्छा पहना और न ही आपके चेहरे पर ऐसी रौनक दिखाई दी जो कि अब नजर आ रही है। आखिर इसमें कोई राज तो जरूर है। शहाबुद्दीन गौरी ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर मुशाबहन के असद इसरार पर उसने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक मजलिस कायम है जिसमें चारों जानिब नूर ही नूर है। दर व दीवार ऐसी रोशनी से जगमगा रहे हैं जो आंखों को चुंधियाए देती हैं। उस मजलिस में खिदमतगारों का एक हुजूम है जो इंतहाई सलीका मंदी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं भी इस मजलिस में मौजूद हूँ। सामने कदरे ऊंचाई पर एक तख्त बिछा हुआ है जिस पर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। बुजुर्ग की निगाहों में इस कदर हिलावत है कि हर कोई उन्हीं की जानिब मुतवज्जा है, मगर वो जिक्र इलाही में मशरूफ व मशगूल है। मजलिस में एक ऐसा तकद्दुस व एहतराम है कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हर शख्स अपनी जगह पर खामोशी से यूं बैठा है जैसे किसी मस्जिद में बैठा हो। कोई शोर शराबा नहीं, हत्ता कि कोई सरगोशी भी नहीं। एक मौजज़ाती और कशमाती तर्ज की फिजा है कि जिसने सबको अपने हिसार में लिया हुआ है। मैं हैरत में इस सारे मंजर को आंखों में समेट रहा होता हूँ कि एकदम उस बुजुर्ग शख्स का एक खादी मेरे जानिब आता है और वो मेरा हाथ थामता हुआ हुजूम में से रास्ता बनाकर मुझे उस बुजुर्ग के पास ले जाता है और ऐलान करता है कि शहाबुद्दीन गौरी हाजिर है। वो बुजुर्ग शख्सियत अपनी आंखों को जुम्बिश देते हैं और मेरी तरफ इंतहाई शफकत व मोहब्बत के साथ देखते हुए इंतहाई बावक़्क़ार और मशहूर कुन आवाज़ में मुझे कहते हैं, शहाबुद्दीन, रब ज़ुल जलाल ने तुझे काफिरों पर फतह अता कर दी है। तुम्हें मुबारक हो कि हिंदुस्तान की अजीम सल्तनत रब कादिर व कदीर ने तुम्हारे नाम कर दी। मैं उस बुजुर्ग से कुछ पूछने ही वाला होता हूँ कि अचानक मेरी आँख खुल जाती है और मेरी बेदारी पर जो पहली आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है वो मौज़िन की होती है, जो मस्जिद में बुलंद आवाज़ से ऐलान कर रहा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़े हैं। मैं गवाही देता हूँ कि खुदा वाहिद ला शरीक के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने उस ख्वाब की ताबीर अपने मुशाबहन से पूछी तो हर किसी ने मुख्तलिफ राय दी, मगर क्योंकि उनमें से कोई भी ख्वाबों की ताबीर नहीं जानता था और फिर ऐसा हुआ कि अगले 2 दिन उससे मिलता जुलता ख्वाब शहाबुद्दीन गौरी ही देखता रहा। इस बुजुर्ग शख्सियत ने शहाबुद्दीन गौरी से कहा, मायूसी गुनाह है, रब रहमान रहीम मायूस होने वालों को पसंद नहीं फरमाता। शहाबुद्दीन गौरी को इन ख्वाबों की ताबीर के बारे में परेशान देखकर एक बुजुर्ग दरबारी ने शहाबुद्दीन गौरी से कहा, बादशाह मुकर्रम, यहाँ से कुछ दूर एक वीरान बस्ती है, एक अल्लाह वाला रहता है, आप मुनासिब समझे तो उसके पास चले जाएं। हो सकता है कि वो आपको उन ख्वाबों की ताबीर बता दे। शहाबुद्दीन गौरी ने मशवरा पर अमल किया और उस बुजुर्ग के पास हाजिर होकर ख्वाब बयान किया तो उसने कहा, मुबारक हो, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें उस शख्सियत की ज़ियारत नसीब होगी कि जिनकी ज़ियारत मैं भी नहीं कर सका और दिल में हसरत रखता हूँ और शायद यही आरजू लेकर मर जाऊँ। उन बुजुर्ग शख्सियत ने जो कुछ फरमाया वो हर्फ ब हर्फ सच साबित होगा। वक्त और बहुत ही अच्छा वक्त रब ज़ुल जलाल ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है, जाओ तैयारी करो बस। उस बस्ती में तन तनहा रहने वाले बुजुर्ग के एक एक लफ्ज ने शहाबुद्दीन गौरी के जिस्म की नस नस में बिजली सी भर दी। अब उसने राजा पृथ्वीराज से मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को इकट्ठा करके इंतहाई पुरजोर और पुरजोश अल्फाज में तकरीर की। उसने अपने फौजियों से कहा, यह सच है कि हम कुव्वत व ताकत में अपने दुश्मन से कम है, हमारी जंगी साज व सामान थोड़ा है, हमारे फौजियों की तादाद कलील है, मगर मैदान जंग में ये चीजें अपनी कदर व कीमत उस वक्त खो देती है जब जज्बा शहादत मौजज़न होता है। तारीख इस्लाम शाहिद है कि सिपाहियों की कलील तादाद ने मुसलमानों के दुश्मनों के कशीर तादाद पर फतह हासिल की है और इसकी एक मिसाल नहीं कई मिसालें हैं। उठो, आगे बढ़ो, रब कादिर व कदीर की मदद और फतह की नावेद हमारी मुंतजिर है। इस दफा शहाबुद्दीन गौरी की सिपाहियों की तादाद कम व बेस 1.25 लाख थी। सफर शुरू हुआ। रास्ते में शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान में भी पड़ाव किया और फिर लाहौर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने एक मसाहिब को खुसूसी तौर पर अजमेर भेजा, जो कि शहाबुद्दीन गौरी का पैगाम लेकर पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचा। मसाहिब जब पृथ्वीराज के दरबार में पैगाम के हमरा हाजिर हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे कहा कि वह खुद ही पैगाम पढ़कर सुनाए। चुनांचा उसने बुलंद आवाज से पैगाम पढ़ा।
पृथ्वीराज, गौर से समझ कि हम मुसलमानों का तरीक है कि जब हम कुफ्र से भरपूर इलाकों में पहुंचते हैं तो हुज्जत पूरी करने के लिए उन्हें दावत इस्लाम देते हैं। अगर वो मुसलमान हो जाए फिर उन्हें उस इलाके की हुकूमत दे दी जाती है। अगर वो मुसलमान होने से इनकार कर दे और आमादा जंग हो तो फिर मुसलमान रब जुल जलाल के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने देने और दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए मैदान जंग में दाद सजाद देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही ये पैगाम सुना तो वो अजहद गजबनाक हो गया और वो जिंदगी में आज तक इस कदर गुस्से में नहीं आया था जितना अब था। वो बड़बड़ाया और चीख कर बोला, अहमद साहिब, अपने सरदार को कह दे कि पृथ्वीराज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है बल्कि उसके हाथों में तलवार है। जैसे वो चलाना खूब जानता है। अगर तेरे सरदार को याद ना हो तो उसे याद दिला देना कि आज से तकरीबन 1 साल कबल मैंने उसे तलवार की चमक दिखाई थी, मगर शायद वो उसे भूल गया है या उसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया है या कि मौत उसे आवाज दे रही है। उसने मुझे इस्लाम की दावत देकर मेरी गैरत को ललकारा है और मैं भी राजपूत हूँ। राजा पृथ्वीराज चौहान मजहब की आड़ में इसी लम्हे दूसरे हिंदू राजाओं को खतूत लिखवाए ताकि उनकी आनत हासिल की जा सके। इसी तरह उसने 4 लाख से ज्यादा फौज जमा कर ली। अगरचे जंगी व अस्करी हवाले से राजा पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी पर बरतरी हासिल थी, लेकिन जिस अमल के पीछे कोई जज्बा कारफरमा हो, जीत हमेशा उसी की होती है। खूब लड़ाई हुई और बिल आखिर राजा पृथ्वीराज चौहान जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी फौज मैदान जंग से भाग गई और अब कादिर व कदीर ने अपने नाम लेवाओं को फतह मुकद्दर की। फतह के हुसूल के बाद हालात जब मामूल पर आए तो शहाबुद्दीन गौरी को किसी ने खबर दी, बासत सलामत अजमेर यूं तो बुतों की सरजमीन है मगर यहाँ एक मर्द कलंदर भी रहता है। शहाबुद्दीन गौरी ने जैसे ही यह खबर सुनी, एक अनजानी सी बेकरारी ने उसे घेर लिया। उसने कहा वो उसी लम्हे उस मर्द कलंदर से मिलना चाहता है। और जब शहाबुद्दीन गौरी वहाँ पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि ये तो वही मर्द कलंदर थे जिन्हें उसने ख्वाब में देखा था और जिन्होंने उसे फतह की खुशखबरी दी थी। ये बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। शहाबुद्दीन गौरी वल्हाना अंदाज में आगे बढ़ा और उसने अपना ताज शाहाना उतार कर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में रख दिया और अदब के साथ सर झुकाए नीचे बैठ गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने शहाबुद्दीन गौरी का ताज उठाया और इसके सर पर रखते हुए फरमाया, तुम्हें रब करीम व अजीम ने बहुत बड़े दुश्मन के मुकाबले में फतह नसीब की है। अब तुम इस सरजमीन में दीन इस्लाम की सरबुलंदी व सरफराजी के लिए सर धड़ की बाजी लगा दो और अपने रब के एहसान का शुक्र अदा करो और अदल व रहम से काम लो। रब ताला तुम्हें कामयाबियां अता करे। यूं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कही थी वो हर्फ बा हर्फ पूरी हुई और वो राजा जो एक मर्द कलंदर को अजमेर से निकल जाने का हुक्म दिया था अब खुद अजमेर से बड़ी जिल्लत व रुसवाई के साथ निकल चुका था। राजा पृथ्वीराज चौहान जो कि बातिल की इलामत था, इसकी पसपाई से कुरान के हकीम की इस फरमान पर मोहर तस्दीक हुई कि हक आया और बातिल गया। बेशक बातिल तो जाने ही वाला था। जौक दर जौक हिंदू अपने बातिल मजहब को छोड़ वहदानियत व हक्कानियत के सिराते मुस्तकीम पर गामजान हुए और देखते ही देखते दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। 1 लाख से जायद राजपूतों ने इस्लाम कबूल किया। ये वीडियो बस यहीं तक है। इस तरह की दिलचस्प और अनोखे वाक़यात को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।